Okay. Got it. Hey everyone, just hold on for a second while I add Aditya Bhaiya to the call. Right. Welcome. Hello Bhaiya. Hello. Audible like, yeah? हाँ audible है. Hi. Hi Bhaiya. Hi. I am Pranav. We just called. Pleasure to meet you. आप कंफर्टेबल हो? आपको सब ठीक आ रहा है क्या? हाँ सब सही आ रहा है फिलहाल तो. हाँ, ठीक है भैया. तो आई जस्ट गिव अ बेसिक इंट्रोडक्शन. तो मेरा नाम प्रणव है. आई एम अ fresher from IIT BHU, and I'm going to host the session. And our wonderful guest is Mr. Aditya Prakash Gupta. Aditya Bhaiya was a core team member. Aditya Bhaiya was a core team member of the Aero Modeling Club of 2020-2021, which is one of the most prestigious clubs in campus. So that is not saying less. It's a very high thing to achieve. And was also the content and creative head at Udayam 2021. Interestingly, one of the most important topics right now for all freshers is brand change. Bhaiya is also brand changer towards ECE. He has done his internship at Oracle, and at the end of his internship, was also offered the post of software development engineer. So again, not a small feat. Keeping all academic achievements aside, Bhaiya is also amazing at singing and guitar. So these are not individually also this is one of the biggest achievements, and Bhaiya can do all at the same time. So it's a huge privilege of having Bhaiya as a guest in this session. Thank you, Bhaiya. Is there On, anything that I have missed in on, the? नहीं सब कुछ तो इंक्लूड कर ही लिया है मुझे लग रहा है. No, आपका your guitar as a starting on guitar as myself, your guitar skills are very impressive. I have to say that. Okay, thank you, honored. It's amazing to have you here, Bhaiya. So I guess Yeah, thank are you. you fine to start right now? If it's comfortable, we can start. Yeah, I'm like quite comfortable. हाँ, चलो तो I guess we can start. हाँ, I guess we can start right now. So let's start with a very common question. So we all have been through the effects of COVID. So how would you say that has because it is a recent issue relatively. So how would you say it has affected your life? Assuming that it has done a bit of quite bad stuff, I mean quite negative effect to all of us. Would you say it had a relatively higher positive or negative effect on you? Uh, See, what I will say that it's neither too much positive and neither too much negative. Like, yeah, there are quite a few benefits of COVID also. Like, we get a chance to work from home. So, and side by side we have a family, but yeah, on the side simultaneously we are missing the interaction with the professional in the professional world. So that's kind of quite negative. And for as a fresher, like I feel that it's kind like we are missing so much fun that we must be having in the on campus of the company, and also the exposure which we could be facing there, but we are not getting here. So yeah, that's some kind of drawback. And more of like on the college life, I guess, as you know, like you must have also be 1 year of COVID college life. So I guess the exams were fun, and Exactly. yeah, Yes. so exams were quite fun. And yeah, regarding the bonds between the friends, so yeah, kind of some bonds got loosened up, and while some bonds with the friends, like especially the school ones, were quite strong enough. So yeah, so that's kind of like a varied effect, neither too much positive and neither too much negative. We can use it to our advantage, and but then it will also have its disadvantages as well. So Yeah, actually, and both the disadvantages was on the health. Like we yeah. must have faced like the kind of discipline we lacked during the COVID. So True. yeah, Yeah, that was. that is fair. Let's say if because we are all freshers, so I think it's always good to start from the beginning. So could you maybe have like a brief idea of your mindset during entrance coaching that time, and then how it changed in campus, like when you saw IIT BHU for the first time, all that difference. Uh, uh, yeah, when I started coaching, like I don't know, like why.
I entered the coaching. Like I didn't have anything in mind. So it was like more for peer pressure at that peer point of time. लाइक कि यार सभी कर रहे हैं तो चलो अपन भी कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है, मतलब एक आईआईटी का है चलो अपन लाइक उसके पहले मेरे को 11th के पहले बताऊं तो सेम आई डिडंट हैव लाइक एनी आइडिया ऑफ what an IIT is or what will I do after class 12th, anything. It was like just chilled and all, but after entering in the coaching, yeah, some I think I kind of started studying. So like 11th was, as you know, 10th करने के बाद 11th कोई नहीं पढ़ता है. So yeah, 11 got like wasted, and in 12th like yeah, I started studying. So like JEE के जब मैं JEE दिया था तो मेरे को लाइक 11th का सिलेबस का बिल्कुल आइडिया नहीं था, मतलब एकदम वॉश आउट हो चुका था. सिर्फ 12th का सिलेबस थोड़ा बहुत लाइक 50-60% आता था. वो भी लाइक ऐसा था कि बोर्ड्स के उससे मेन प्रिपरेशन थी. लाइक काफी मेरा स्क्रू अप हो चुका था. मैं तो यार यही सोच रहा था कि मतलब एक साल ड्रॉप लेना ही लेना है, चलो आगे जाके. तो मैंने अपने वही होम टाउन से किया था. मैं ये सोच रहा था कोटा जाऊंगा वगैरह वगैरह. बट या गेम ऑफ डेस्टिनी. तो जे एडवांस 2018 निकल गया जैसे तैसे, और जनरल से निकल गया अच्छे खासे. तो फिर अपन इधर आए तो इधर अपन को एक आईआईटी खड़गपुर में कोई मिल रही थी ब्रांच, आई गेस ओशन और लाइक अर्थ साइंसेस टाइप की. एंड या फिर इधर मिल रही थी, इधर अपन को इधर फार्मा मिल रही थी. तो उस टाइम अपन ने इधर फार्मा उठा ली थी फिर कि, और फिर ये सोच पड़ा कि यार चलो ट्राई करेंगे ब्रांच चेंज का, मार देंगे, कोशिश करनी है. तो हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा काफी रोने में गया कि नहीं यार ब्रांच चेंज करनी वगैरह वगैरह. लाइक ऑब्वियस सी बात है कि एक फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा सा होता है कि, क्योंकि उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी रहती है. अगर उसके एक अपॉर्चुनिटी ना रहे तो शायद थोड़ा क्रिंज कम करेगा, बट उस काफी रहता है. तो करनी हो गई. फिर उसके बाद हो गई तो फिर एकदम फिर डिसिप्लिन अपन भूल गए फिर. तो फिर लाइफ काफी अपनी लाइक 3.5 साल लाइफ अपन काफी इनडिसिप्लिन रहे हैं. और फिर अब खैर फिर धीरे धीरे ये हो गया कि चलो देखते हैं जॉब करने का टाइम आ गया तो फिलहाल है. कमिंग टू द टॉपिक वो ब्रांचेस के टॉपिक में, तो आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक इज ब्रांचेस का वैल्यू कितना है? लाइक इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, और या फिर कैसे होगा आपके मन में ब्रांच चेंज का टॉपिक? यार देखो, जब लाइक 4 साल पहले का सिनेरियो अलग था और आज का सिनेरियो काफी अलग हो गया है. लाइक 4 साल पहले अगर फार्मा वगैरह का हाल देखो या सिरेमिक वगैरह का, तो उधर काफी कंपनीज नहीं खुलती थी. लाइक मेरे इंटर्न सेशन में भी काफी कंपनीज थी जो कि सिर्फ सीएससी, ईसी और सर्किटल के लिए खुली थी. बट फिर लाइक लास्ट ईयर मैंने देखा कि डी शॉ वगैरह ने लाइक मैकेनिकल सिविल वालों बंदों को भी हायर किया था. और तो लाइक उस टाइम फार्मा से लाइक प्लेसमेंट भी अच्छे खास कुछ थे नहीं. और लाइक सीनियर्स जो होते नहीं, सीनियर्स ने लाइक काफी डरा रखा था हम लोग को कि प्लेसमेंट नहीं है वगैरह का. तो थोड़ा डर लगता सबको कि यार क्या होगा वगैरह. जब प्लेसमेंट वगैरह की बात आती है सभी की फटने लगती थोड़ी सी. तो कहीं ना कहीं वो चीज थी मेरे अंदर उस टाइम पे. बट अब का सिनेरियो अगर कंपेयर करूँ तो काफी सुधर चुका है. तो अब लाइक इतनी ब्रांच का कहीं कहीं वैल्यूज है. लाइक कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होगी लाइक एचएफटीज वगैरह, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, जो कि सिर्फ सीएससी सर्किटल मांगती हैं, लेकिन बट काफी कंपनीज फ्लेक्स हो चुकी हैं. तो अगर आप में लाइक इतना है, कैलिबर है, आपने कोडिंग करी अच्छे से, तो आप ले जाओगे उन कंपनीज. लाइक इस साल भी मैंने देखा था फार्मा से काफी अच्छे अच्छे पैकेजेस गए हैं लाइक. तो मैं कहा चलो ठीक है, 4 साल पहले सिनेरियो अलग था, आपका सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है. तो अगर नहीं भी होती है तो उसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है. आपने अपना अटेम्प्ट दिया, आपको मेन काम है कि आप अपना अटेम्प्ट करो, रिजल्ट आना ना आना सब डिस्टिनी है वो. हाँ, तो अंडरस्टूड, फेयर इनफ. मतलब अभी तो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग टाइम है कि ब्रांचेज कैसे होगा, होना है कि नहीं. तो इसलिए तो आपसे. और आपको आपने अभी बोला कि शुरुआत में कैसा था इन द बिगिनिंग, एंट्रेंस कोचिंग वगैरह. अभी आई गिव अ बिट ऑफ आइडिया कि आप कहाँ पे हो, वो आपके अचीवमेंट्स क्या है. अब आपके फ्यूचर के बारे में आपको कुछ ब्रीफ आइडिया दे सकते हो कि हाउ इट इज गोइंग और क्या होगा? या तो फ्यूचर का क्या है ना, लाइक मैंने यार देखो अभी तक का जितना जो सोचा था ना वो सब तो मैंने लाइक कर लिया. लाइक मेरा प्लान में था कि एक अच्छी सी जॉब चाहिए, पीपीओ चाहिए था, क्योंकि मेरा आगे का प्लान यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का था कॉलेज में ही. ओके. तो वो सब तो लाइक विद द प्लान हुआ. लाइक मेरा 3rd ईयर में लग गया. 3rd ईयर में मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की थी, बट एक्चुअली
इट वाजंट वर्किंग एट दैट टाइम स्टार्टिंग में. सो थोड़ा ब्रेक हुआ, फिर फोर्थ ईयर फिर एक बार स्टार्ट करी, तो फिर लाइक काफी हद तक अब मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी. एक तो कोविड में बैठे बैठे भी, और काफी मतलब घर बैठे बैठे हो गया था थोड़ा सा. तो फिर मैंने उसको साइड में रख दिया फिलहाल अभी. और पहले अपनी हेल्थ को सुधारना है, काफी तक सुधर गई अब तो फिर से लाइक उस पर वापस फिर से फोकस करना लाइक जॉब. बट अब हाँ, अब एक चैलेंज ये है कि लाइक अब आपको जॉब के साथ उसको मैनेज करना है. सो दैट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज, क्योंकि अब दिन में आप 5 घंटे का जॉब कर रहे हो. बट मैं कहता हूँ ठीक भी है, क्योंकि लाइक जॉब आपको एक थोड़ा सा डिसिप्लिन तो कर रही है. लाइक कॉलेज में तो बिल्कुल कोई डिसिप्लिन रह नहीं सकता है. कॉलेज में अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम की बात करो तो ज्यादा पढ़ लेते हैं कॉलेज वाले भी अगर बैठे बैठे हैं घर में. तो जॉब में क्या आपको लिमिटेड सोर्सेज लेने ही पड़े, मजबूरी है आपकी. एक वो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. बट हाँ, अगर नहीं भी होता है तो भी एक क्या उनके पास जॉब है, तो ऐसा नहीं कि काइंड ऑफ सॉर्टेड. तो आपका जैसे बेसिक आई मीन चाइल्डहुड डिजायर था यूपीएससी क्रैक करने को? कह सकते लाइक 11th के बाद बना शायद, मे बी 11th 12th के बाद आई गेस शायद बना. अच्छा अच्छा, ओके. तो आप अभी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या, मतलब स्ट्रॉन्ग इन रेगुलरली, या फिर आप देख रहे हो आप पहले जॉब सेट करते हैं? देखो मेरा तो लाइक काफी हद तक मैंने सेट कर लिया है, और जॉब भी साथ साथ ऐसा नहीं कि मतलब चल रही है, वो भी चल रही है. बट हाँ अभी लाइक एक ही हफ्ता हुआ है जॉब में, तो अभी हाँ उतना थोड़ा सा थिंग्स को उतना गेट टू हुआ नहीं होगी मैं, तो उसको भी मैनेज करना है साथ में. तो अभी फिलहाल थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं से टाइम निकलना धीरे धीरे चालू होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा टाइम पे. हाँ, तो अब तक तो थोड़ा सीरियस टॉपिक में था, अब थोड़ा बैक करके नॉर्मल टॉपिक में आता हो. मतलब आपके कैंपस टाइम में आपके 3 साल ऑफलाइन थे ना आपके लिए? मैं कह सकता हूँ 1.75 ज्यादा बेटर रहेगा. 1.75 years 1.75 या मार्च 2020 तक या ऑफलाइन था. हाँ या वही तो कोविड का शुरुआत. तो इन योर ओपिनियन व्हाट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरीज आपके लिए कैंपस में? ऐसे यार काफी सारी रही हैं, बट हाँ मतलब जैसे लाइक क्लास वगैरह में जाते थे ना, तो क्लास में एक बार अपन लाइक जैसे हम लोग के एक प्रोफेसर थे इलेक्ट्रॉनिक्स से, लाइक काफी अच्छे से, शायद उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट थे. तो उन्होंने लाइक रिस्ट्रिक्शंस थे उनकी क्लास में कि अगर 5 मिनट का लाइक उनके में एक बकेट रहती थी कि इस 5 मिनट के अंदर अगर वो आ गए फिर 5 मिनट बकेट चालू है, उसके अंदर नहीं आ गए तुम तो गए तुम, मतलब लाइक तुम्हारी अटेंडेंस जाएगी, और तुम आए तो फिर वो अगला बंदा तुमको बाहर कर देगा, मतलब गेट ही बंद कर लेगा एक तरीके से. तो अब सर एक दिन मैं गया था तो मैंने देखा सर ने यार आगे वाला गेट बंद कर रखा है, पीछे वाला गेट खुला है. लाइक बड़े क्लासरूम है, पीछे वाला गेट खुला है. तो अब क्या बताऊं मैं, तो अब मैं थोड़ा मतलब मैं उस टाइम पर लाइक अपन काफी लाइक इनडिसिप्लिन थे, क्योंकि ब्रांच चेंज हुई थी नई नई, उसी बाद ही फिर फर्स्ट ईयर की बात है. तो फिर अपन ने सोचा बहुत हर क्लास अपन लेट ही जाते थे, कोई नहीं दिक्कत नहीं, अपन हर क्लास लेट जाएंगे. अपन ने ऐसा एक बना रखा है शेड्यूल, क्योंकि अब मेरे अंदर एक तो ये था कि फर्स्ट सेम में मैं हर क्लास मेरी 100% अटेंडेंस थी, मैं रोज क्लास जाता था. ब्रांचेस करनी थी, अब तो फिर निकल चुका था, तो अब मेरे अंदर हाँ चलो थोड़ा इंजीनियरिंग लाइफ एंजॉय किया है. तो मैं गया, तो मैं आगे देखा आगे दरवाजा बंद है, तो मैं तो चलो आज पीछे से घुस के देखा जाए क्या होगा, देखते हैं. तो मैं घुसा तो लाइक मैं सीट्स लाइक काफी बड़ी हैं, काफी मतलब रेंग के जा रहा था जैसे लाइक अ स्नेक के. तो गया तो मैं अंदर गया तो मतलब जाके चुपचाप बैठ गया. अब पता नहीं उनको फिर कहाँ से आया कि मतलब ये बंदा तो अभी था नहीं, अचानक से कहाँ से आ गया. आयो मेरे पास, कहाँ से आ गए तुम अचानक से ऐसे. तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, नहीं नहीं मैं यहीं था, यहीं था, अभी तो नहीं थे. कहना मैं नीचे झुकाऊंगा पेंसिल के, पेन गिर गया होगा. कुछ कुछ प्रोफेसर हो भी सकते हैं कभी कभी ऐसे, मतलब. तो पकड़ा गया, फिर बाहर गया, एक दो क्लास में सस्पेंड कर दिया. ठीक है, अब फिर उसके बाद रोज गया फिर क्लास ढंग से. अच्छा, ऐसा तो थोड़ा इंटेंस कहानी है. अच्छा. ये कह सकते हो, और भी बहुत सारी हैं लाइक, खासकर स्टोरीज तब बनती है ना जब लाइक साथ वाले तुम्हारे भंड पड़े और तुम सोबर हो. तो मैं सोबर वाला बंदा रहता था ज्यादातर, क्योंकि मेरे को मजे लेने होते थे लोगों के. तो उससे काफी सारी कहानी जुड़ी हुई है. अभी एक टॉपिक है जो जो हम फ्रेशर्स के बीच में बहुत ओपन और इंटरेस्टिंग है.
जो वो है कोडिंग, मतलब अभी कंफ्यूज है कि एक्सप्लोर करना है या फिर कोडिंग करना है, तो आपकी करियर में कोडिंग इज हाउ मच यूजफुल वाज इट फॉर योर इन योर करियर, एंड आप क्या क्या एडवाइस देंगे कोडिंग के आइडिया में? हाँ, अलग अलग लोग रहते हैं, कोडिंग के अलग अलग एडवाइस होती है। लाइक मैंने काफी उन लोग के साथ भी सेशंस किए हैं। मैंने देखे हैं लाइक जो टॉप कोडर्स रहे हैं तो उनके अलग एडवाइस रही होगी, उनकी एडवाइस अपनी जगह सही रही होगी, मेरी एडवाइस अपनी जगह सही रहे, अब मेरे को, क्योंकि वो मेरे लिए काम करी है। तो कोडिंग का यार ऐसा सीन है कि मतलब मैं तो यही कहूंगा कि मन करे तो करो, नहीं मन कर रहा एक्सप्लोर करो चीजों को। हम्म। मतलब देखो मैंने भी ऐसा नहीं कि मतलब चलो एक से मैंने ब्रांच चेंज अपना गया, फिर एक से अपन ने फिर बैठे क्या करना है ये सब एक्सप्लोर किया, सीरीज वगैरह देखी, खूब सारी चीजें यही सब किया है मैंने बैठ कर कॉलेज में। और फिर अब देखा जाए तो कोडिंग मैंने अगर सही से चालू की है तो इट वाज द फोर्थ सेमेस्टर, जो कि इंटर्न के एक सेमेस्टर पहले वाला होता है। इट वाज द फोर्थ सेमेस्टर जब मैंने फुल फ्लैश ढंग से चालू की है, दिसंबर 2019 आई गेस हम्म। वो टाइम था जब हम थर्ड सेमेस्टर खत्म हो घर आए थे। उसके बाद तब मैंने ढंग से कोडिंग करना चालू की है। उसके पहले लाइक ऐसे ही था, एवं ही चल रहा था, लुक कर रहे हैं तो अपन भी चलो हाथ मार लेते हैं, सवाल बन नहीं रहे हैं, खुद दिन में बैठे हैं 10 घंटा कोड फुर्सत में बैठे हैं, सवाल बन नहीं रहे, एक ही सवाल के बार देखे जा रहे हैं। तो मतलब कभी कोई काम भी करती हैं चीजें, कभी कोई नहीं भी काम करती हैं सब चीजें। तो इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लाइक मेरे को कोडिंग करना उतना तो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मेरे से ऐसा है कि मतलब मैं दिन में 10 घंटे लैपटॉप पे आगे नहीं बैठ सकता। हम्म। 7 से 8 घंटे में लैपटॉप पे नहीं बैठ सकता, मेरी आंखें में प्रॉब्लम होगी। तो मैं वैसे जॉब नहीं करता। लाइक मोर काइंड ऑफ फील्ड वर्क मेरे को ज्यादा पसंद है हम्म। कि थोड़ा सा हाँ मैं जाऊँ बाहर घूमूं 10 लोग से मिलूंगा वगैरह करके। तो ये कह सकते हो कोड एक्सप्लोर करना ज्यादा मेरे समझ से ज्यादा जरूरी होता है। एक हम्म। साल तुम दो अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आ गई ना। लाइक काफी कंपनी सब कंसल्टेंसी वगैरह की आ रही हैं, मैंने देखा कैंपस में कुछ कुछ कंपनीज ऐसी, भले उतना पैकेज ना दे रही हूँ बट अभी नहीं दे रही हैं, बट लेटर ऑन लाइक मैं काफी ऊपर प्रोफाइल होगी फिर। हम्म। तो या इट्स काइंड की मतलब उतना एक्सप्लोर करना ज्यादा जरूरी है rather देन कि स्टिकिंग टू एक ही चीज लाइफ में कोडिंग। वैसे आप एम्स में बहुत एक्टिव थे ना, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ एएमसी में, और शुरुआत कैसे हुआ वो सब। शुरुआत यार मैं सही बताऊं तो लाइक हर चीज की शुरुआत ना लाइक एक उससे होती है कि एक प्रॉफिट दिखता चीजों में। तो वैसे ही प्रॉफिट लाइक एएमसी का भी दिखा था अपन को, क्योंकि अपन को फर्स्ट सेम में लाइक ये था कि अपन को घूमने का काफी शौक शौक था। हम्म। तो ये था कि अपन को लाइक दूसरी दूसरी आईआईटी में जाके घूमना है वगैरह। तो एएमसी हम्म। वाले लाइक फर्स्ट ईयर में लाइक ले भी जाते हैं लोगों को। अब तो 2 साल से कोविड वजह से नहीं ले जा पाया, लेकिन पहले ले जाते थे कि मतलब आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर का लाइक बोइंग के वहां पे कॉन्टेस्ट होता था। तो मेन अपन को इंटरेस्ट वही था, प्रॉफिट वही था कि अपन को इसी काम के लिए घुसना है चलो। और लाइक उसी वो वहां पे जाने के लिए मैं बताऊं मेरे को लगता है काफी लोग इसीलिए एएमसी ज्वाइन करते भी हैं और फिर वो छोड़ ही देते हैं लाइक 1 डेढ़ महीने में। सही। मतलब जो चला गया, मैं तो वो तो गया, जो नहीं गया तो वो लाइक तो उसको थोड़ा डिमोटिवेट करता है। तो अपन भी मोटिव यही था कि जाना है, बट अपन नहीं जा पाए थे क्योंकि कुछ अपना कुछ एब्स्ट्रैक्ट वगैरह था वो वहाँ पे सबमिट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि लाइक ऐसा था कि सीनियर्स लोगों ने बोला कि छाप लो, कोई चेक नहीं करता, तो अपन ने भी सब कुछ छाप दिया। एक एक हेडिंग, बस हेडिंग भी छाप दी, हेडिंग को ऊपर नीचे कर दिया। अपन को चलो थोड़ा एडिट करना है ऊपर नीचे कर लेते हैं यार, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फिर। तो अपन का वो चला गया, तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो गई थी। बट हाँ फिर भी थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था, पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ था। बट फिर भी हाँ एक दो दोस्त थे अपने साथ में, तो वो जाते तो चलो मैं भी चलो थोड़ा बहुत चल रहा रहता हूँ। मतलब खाली बैठ के क्या ही करूंगा, चला जाया करता था। फिर धीरे धीरे और इवेंट्स हुए तो उसमें अपन गए, उसमें थोड़ा सा फिर थोड़ा मैनेजरियल वर्क मिला तो वो किया। तो ऐसा नहीं, क्लब में भी मैंने लाइक खूब काम चोरी भी की है, खूब काम भी किया है। काम चोरी भी लाइक खूब करी है। तो वो लाइक हर बच्चा ही करता है सीनियर्स के साथ। और हके करने का मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी आनी चाहिए, आगे चल के थोड़ा कहीं ना कहीं चीजें काम ही आती हैं, जुगाड़ लगाना आना चाहिए हर चीज में। तो ये थोड़ी जर्नी रही उसमें। फिर आगे चल के अपन को फिर घर बैठे थे। अब घर बैठे बैठे क्या करें, या तो घर में बैठ कर ड्रोन उड़ाओ बैठ कर, तो घर से तो बाहर निकल नहीं सकते थे। तो फिर ये हुआ कि चलो
ट्राई करते हैं क्लब का वेबसाइट वगैरह कुछ देखा जाए, तो एज अ लाइक स्किल सेट, मतलब बच्चों का भी थोड़ा कुछ ना कुछ डेवलप होगा, उनका भी स्किल सेट आएगा, उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा वेबसाइट वगैरह का, कैसे क्या होस्ट वगैरह रहता है, एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब जिन्होंने ढंग से काम किया तो उनको एक्सपीरियंस मिल गया, जिन्होंने नहीं किया ठीक है, उनका भी लाइक ठीक है, उनके पास और प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो वो एक हो गया। फिर आके थर्ड ईयर खत्म हो गया, फिर लाइक एएमसी जर्नी अपनी ये रही बीच में लाइक अपन गए थे खड़गपुर, गए थे घूमने उधर ही से तो। आईआईटी हाँ पूरा आईआईटी है। खड़गपुर गए थे। हाँ अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। चार चार दिन के लिए गए थे अपन घूमने। तो आप आईआईटी में, आई मीन एएमसी में आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था ना, आई मीन आप रोल जो किया था वो थोड़ा क्या? मैसिव। अब एएमसी क्लब में आपका मेन हम्म। इंटरेस्ट एएमसी में था क्या कॉलेज टाइम में, या फिर कुछ और मैं सही कहूँ तो मेरा इंटरेस्ट किस चीज में नहीं था ऐसा लाइक एक क्लब में ही जाना है वगैरह का। हम्म, और मेरा ये था मतलब कि हाँ मेरे को चीजें उस टाइम पर लाइक काफी हद तक ये था कि मेरे को हर चीज प्रॉफिट बेस्ड ज्यादा दिखती है। एक हम्म, तो लाइक कास्ट से हूँ बनिया, तो हर चीज मेरे को प्रॉफिट ज्यादा पहले दिखना होता है, उस चीज के साथ में एंट्री करूंगा, फिर बात की बात होती है। हम्म, तो माइंडसेट ये रहता है प्रॉफिट करना अपन को मेन। तो प्रॉफिट उसमें ये था कि शायद चलो रेज्यूमे में खाली नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स मैं लूंगा एएमसी से। और हाँ वो हुआ भी लाइक काफी मेरे को 3-4 पॉइंट मिले भी रेज्यूमे में एएमसी से, तो मेरा प्रॉफिट वो था। बट हाँ कहीं कहीं लगता है कि नहीं थोड़ा सा ढंग से काम भी करना चाहिए था। हर चीज लाइक यही नहीं होता कि अपन को हर चीज रेज्यूमे में लिखनी है इसलिए हम्म। एक्सप्लोर करना है। अच्छा सही। और वैसे अगर इफ यू हैड द इंफॉर्मेशन यू हैव राइट नाउ आपके मन में जो एक्सपीरियंस सब कुछ, एंड यू कुड गिव वन एडवाइस टू आपके फ्रेशर सेल्फ जो आप जब कैंपस में आए थे, तब इफ यू कुड गिव वन एडवाइस, क्या आप क्या एडवाइस देंगे आपको खुद को? आ, कि सबसे कि रूम में मत बैठ बिल्कुल भी। हम्म, लाइक अगर कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है तो चल ठीक भी है, चलता है। हम्म, बट अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है तो मतलब कि लाइक सीरीज ही देख रहा है दिन भर बैठ कर या कुछ और कर रहा है तो मत बैठ रूम में। हम्म, वो लाइब्रेरी जा। खैर लाइब्रेरी में भी तुमको लगेगा कि नहीं वहां पे मन नहीं लगेगा, बट हाँ 10 लोग रहेंगे बगल में तो कहीं ना तुम कुछ ना कुछ खास करेगा। मतलब रूम में बैठकर तू मतलब ये दिन भर सीरीज वगैरह तो नहीं देखेगा। तो मेरा तो राइट। एक मेन वही था, क्योंकि रूम में बैठने से क्या होता है ना मतलब फिर दिन भर रूम में बैठने की आदत लग गई। फिर लाइक कोई नहीं, अगर हॉस्टल में भी कोई स्पोर्ट्स हो रहा है तो मैं उसमें भी नहीं जाता था फिर कहीं ना हम्म, कहीं रूम में बैठना। और ऐसा नहीं कि मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ बैठकर, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ एक माइंडसेट वैसा हो जाता है। फिर एक ये भी रहता है कि मतलब हेल्थ है, फिर हेल्थ भी खराब होती है, जैसा मैंने कहा घर बैठने से हेल्थ बहुत खराब होती है। हम्म। तो एक्सप्लोर करना वही होगा आपका मेन एडवाइस। मेरा तो मेन वही है कि मतलब हर चीज को एक्सप्लोर करो, फिर 10 बार कोई दिक्कत नहीं, 10 बार फेल हो गए एक बार पास हो गए कहीं ना कहीं से सही सही, हाँ, दिक्कत नहीं एग्जैक्टली। है। थोड़ा लगेगा कि हाँ तुम्हारे पीयर्स तुमसे आगे हो रहे हैं, बट उस चीज को तुमको नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। वो चीज नेग्लेक्ट करना बहुत जरूरी है आगे, क्योंकि उस समय तो नहीं पता चलती बट आगे चल के ये चीज बहुत पता चलेगी तुम्हें। वैसे स्पीकिंग ऑफ एडवाइसेस, अब क्या आपको याद है कि योर बेस्ट एंड वर्स्ट एडवाइस जो आपको मिला है इधर आके, शायद वो हमेशा कोडिंग करना ये होगा एक एडवाइस, या फिर एक्सप्लोर मत करना, ऐसा कुछ आपको मिला है क्या जो यू थिंक इट्स अ रियली बैड एडवाइस एंड रियली गुड एडवाइस? देखो रियली गुड तो एक ये था कि मतलब रूम में ना बैठना, मेरे को मेरे सीनियर ने बोला था। ठीक है वो मैंने भले फॉलो ना किया हो, क्योंकि मेरे को भी लगता था यार क्या ही करना, मतलब क्या ही है, सारे बंदा अलग ही रहते हैं अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं काम वगैरह। तो एक वो तो लाइक गलत था। और मैं अभी बता रहा लाइक अपनी ऑडियंस से लाइक जितनी भी ऑडियंस है, और शायद तुम्हें सबको हो सकता है कहीं लग रहा हो क्या ही बोल रहे हैं भैया, मतलब रूम में बैठने से पढ़ाई पढ़ना है तो रूम में पढ़ कोई भी लेगा। बट हाँ एक टाइम बाद तुमको भी लगेगा कि ये चीज कहीं ना कहीं रहती है, जैसे मुझे लग रहा है अभी। और ये बेस्ट बेस्ट एडवाइस थी सीनियर्स की, रूम में ना बैठना। और वर्स्ट एडवाइस करूँ तो ये थी कि मतलब अभी तो फिलहाल नहीं याद आ रहा, बट हाँ कुछ ना कुछ तो होगी। शायद यही थी कि मतलब कि कोडिंग वगैरह पे एकदम फोकस कर लो फिलहाल। वो भी मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वर्स्ट एडवाइस थी, अच्छी एडवाइस थी वो भी, कि लाइक उस समय के सिनेरियो को देखते हुए काफी अच्छी एडवाइस थी वो। ऐसे कोई खास वर्स्ट एडवाइस तो मैं नहीं कह सकता कि कोई सीनियर ने दी हो। लाइक मैं ऐसे सीनियर्स के साथ पहली बार पढ़ा ही नहीं कि मतलब कुछ वर्स्ट एडवाइस दी उन्होंने। लाइक बैठ कर दारू वारू पी हो तो अपन ने पी है, हाँ ठीक है जितनी पीनी थी पी ली,
फिर छोड़ भी दी करके, चलो बस ठीक है, हो गया। अच्छा। एक्सपीरियंस लेना जरूरी था, दारू वगैरह का एक्सपीरियंस लेना जरूरी था, फिर उसको समझ में आता नहीं, सब ठीक है ऐसे, बेटर है, बिना उससे जिंदगी ज्यादा बेटर रहती है। सही, हाँ। तो इज देयर एनी सीनियर या फिर प्रोफेसर और बैचमेट और जूनियर किसी भी जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कैंपस में? सीनियर तो रहे हैं, जैसे लाइक अपने अभी के नहीं, लाइक 2 साल अपने +2 थे, लाइक 2020 बैच पास आउट है सीएससी के। हम्म। अगर तुम लोग नहीं जानते होगे, बट नाम लेना अलाउड है, देना चाहिए। हाँ हाँ, श्योर, डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे लाइक अंकन भैया थे, हम्म। आई वाज द इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडलिस्ट, सो या उनका अच्छा। इन्फ्लुएंस लाइक रहा है, लाइक मतलब वही ब्रांच चेंजर थे, तो मैं हम्म। इन्हीं इन्हीं रेफरेंस से लाइक उनसे मिला भी था, हम्म। कि ब्रांच चेंज करने के उससे था मैं। उन्होंने लाइक केमिकल टू सीएससी मारी थी, हम्म। और उन बंदे उस बंदे का लाइक आर्ट के आर्ट से हम लाइक 10वीं थी। हम्म। शायद कोविड के बाद असाइनमेंट वगैरह इतने कॉपी होते, तो शायद ना रही है उनकी। हम्म। तो मतलब एक आध सेम में अगर नहीं रही, 9.9 9.8 9.9 ऐसे कुछ रही थी उनकी सीजी। हम्म। लाइक उनसे डिसिप्लिन का लाइक काफी मेरे को मिला, लाइक मेंटेनेंस डिसिप्लिन का, वो भी लाइक अभी इसमें फिलहाल यूपीएससी का ही देख रहे हैं वगैरह। अच्छा, वो तो वही हाँ, एस्पिरेंट। या हाँ। वो भी लाइक अपना जॉब छोड़कर फुल फ्लेज्ड वो भी आ चुके हैं इस चीज में। तो हम्म। उनका भी वही है, तो मेरा का भी थोड़ा सा रहता ही है कि चलो कोई है साथ में ऐसे। हाँ, बेस्ट अच्छा। सीनियर तो मैं उन्हीं उन्हीं को बोलूंगा एक तरीके से। और प्रोफेसर्स के बारे में आपको कुछ ये है क्या कि वो अच्छी तरह पढ़ा सिखाती है, या फिर इंटरेस्ट थोड़ा कम है उनको सिखाने में, ऐसे कुछ? पढ़ाई नहीं है अपन ने इतना कि तुम बता पाए प्रोफेसर कैसे। अ, देखो जितना मैंने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर जितना पढ़ा था, हम्म। उस हिसाब से लाइक हाँ, प्रोफेसर को इंटरेस्ट रहता है, स्टार्टिंग में खूब इंटरेस्ट रहता है प्रोफेसर को, हम्म। इसको नया नया बैच मिला वो पढ़ाएगा अच्छे से। बट या बट फिर जब ऐसी ही तुम लोग मतलब शक्ल लेकर जाओगे, एकदम उठी उठी कि मतलब अभी मैं सोकर उठाऊं, अभी मैं आ गया क्लास में करने, एहसान कर रहा हूँ तुम पर मैं क्लास करके, तुम क्लास हम्म। लगा रहे हो, अब मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ। हम्म। तो इट्स नेगेटिव, इट्स इट्स क्वाइट नेगेटिव, इट्स नेगेटिव फॉर द प्रोफेसर एक्चुअली, कि यार कि मतलब बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो भी फिर यही करेगा, फिर पीपीटी पढ़ाएगा या अपना नोट्स बांट देगा बैठ कर तुम पढ़ो, फिर तुमको भी इंटरेस्ट नहीं आना है, क्योंकि उससे भी पता है प्लेसमेंट्स कोडिंग में जा रहे हैं, तुम सिर्फ कोडिंग करने वाले, तुम कोर का पढ़ के क्या करोगे भाई। इसी लाइक इसी में तो फिर भी लाइक प्रोफेसर ने बहुत पढ़ाया है, भले ही उनको मालूम है कोडिंग जाना, बट हाँ कोडिंग में भी काफी टॉपिक्स होते हैं जो कि लाइक इसी से काफी रिलेटेड है। वो स्पीकिंग ऑफ ब्रांच चेंज एंड स्टफ, वो लोड ओवरलोड को कैचअप करना, उसके बारे में कुछ बात कर सकते हो कि कैसा था? वैसे आपको ऑफलाइन में कैचअप करना पड़ा ना? हाँ मेरे को बिकॉज तो ऑफलाइन ऑफलाइन में हाँ, कैचअप करना था। तो कैसा था वो? सेम देखो मेरे को यार 2 ओवरलोड थे अपने, एक हम्म। लाइक ये सीएसओ का था, हम्म। बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला, वन ओवर, हाँ हाँ। 101 सीएसओ 101 था। और दूसरा था ये एमटीएच, सॉरी एमटीएच नहीं, MA 101, मैं तो हाँ, सही। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, थॉमस कैलकुलस वाला। हाँ हाँ, पहला समय। तो वो मेरे को ऐसे याद, थॉमस कैलकुलस से याद है वो। तो सीएसओ 101 तो आसान था, क्योंकि अपन ने कोडिंग काफी पढ़ रखी थी स्कूल में वगैरह से, तो सीएसओ 101 तो लाइक जो वो पढ़ाते थे वो मेरे को पहले से आता था। अच्छा। कुछ ही एक आध टॉपिक्स थे जो मेरे को खुद करने थे, और मैंने उसके लिए कुछ खास पढ़ के नहीं गया था। मेरे को इतना याद है कि जिस दिन उसका पेपर था, उसके उस दिन लाइक मेरा बर्थडे था, तो मेरी रात में जीपीएल भी हुई थी बुरी वाली। तो उस जीपीएल के साथ में पेपर लिखने गया था, जैसे जैसे बैठा नहीं आ रहा था। तो एक तो मेरा ओवरलोड था, बाकियों का ओवरलोड था नहीं वो। तो अच्छा, बाकी हाँ हाँ ब्रांचेज। हाँ, तो उनका काम था मारना मेरे को, और मेरा काम था मार खाना एक्चुअली उस टाइम पर। मैंने कहा आपके चलो ब्रांच ठीक है। क्या बहुत सारे लोगों को ब्रांचेज हुआ है क्या, या फिर ज्यादा का नहीं था, लाइक 4 5 मेरे को याद है। अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो वो काफी प्रॉब्लम करता है इनमें। हाँ, सही सही। अभी भी है। आप वो सीपीआई के बारे में, आपको लाइक सीजीपीए उसको अच्छा रखना है, या फिर थोड़ा कम हो गया भी कोई बात नहीं, इसमें कुछ
आंसर है क्या आपके लिए CGPA? देखो ऑनलाइन में तो मैंने जितना देखा है, लाइक मैं भी लाइक अपन जब थर्ड सेम खत्म हुआ था ऑफलाइन का, तो मैं भी लाइक टॉप 5 या टॉप 6 या टॉप 7 में ऐसे कुछ था। तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है। लाइक सेकेंड सेम के एंड में मैं टॉप 5 पे था, मेरे को ये याद है। थर्ड सेम के एंड में हाँ थोड़ा सा मेरे पे इन्फ्लुएंस पड़ा था, क्योंकि मेरे को फिर ये हो गया था कि यार कोडिंग करना है, पढ़ने वढ़ने को फिर इतना मन करता भी नहीं था। और फिर ये भी था कि मतलब आसपास के बंदों को देखता था, कोई पढ़ता नहीं था वगैरह का। और लाइक सीनियर्स ने भी कहा सीपीआई उतना मतलब नॉन कोर में उतना काम नहीं आती है, बट कहीं ना कहीं वो रहती है ना, चल रहती है कि पढ़ने की थोड़ी, तो अपन थोड़ा बहुत देखे थे, थोड़ा बहुत नहीं देखे थे। फिर बट मेरे अगर मैं फिर उसके ऑनलाइन सेम जब आया, जितने ऑनलाइन सेम हुए, तो लाइक मैं जब टॉप 5 टॉप 7 टॉप 8 मान ले चल मेरे को 100 के बैच में, तो फिर मैं 8 से अब सीधे लाइक 20 में खेल रहा हूँ, 20 21, क्योंकि लाइक मेरी सीपीआई लाइक जितनी उस समय थी उतनी ही रही है ऑनलाइन में भी। अच्छा। बट एक्चुअली द ऑनलाइन में क्या हो कि लाइक जिसने से पहले असाइनमेंट सबमिट किया जाके, जिसने टॉप लिया वगैरह का, इसमें एकदम रैंडम रैंडम ग्रेडिंग में लाइक कहाँ से बच्चे कहाँ उठे मैंने ये भी देखा है। तो या काइंड ऑफ ठीक है, मतलब सीपीआई तुम लोग के ऊपर है एक्चुअली कि तुम्हें करना है। अगर लाइक तुमको रिसर्च में जाना है तो ऑब्वियस सी बात अपनी सीपीआई हाई रखनी रखती है, रखो हाई, बिना कहे रखो। जितनी ऊपर 9 हो जाए, 9.5 हो जाए, 10 हो जाए, जितना ज्यादा तुम उतना तुमको ही एडवांटेज मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सीपीआई अगर करी तो एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़नी पड़ेगी ना, तुमको दोनों रखना है अपना, अगर रिसर्च वगैरह में जाना है तो। कोडिंग वगैरह में जाना, जैसे कुछ कुछ कंपनीज होती है, लाइक एनवीडिया हो गई अपनी एक, और इस साल तो लाइक ये एचएफटीज जो आती हैं, ग्रेविटॉन, क्वाड आई वगैरह, तो ये सब भी सीपीआई कट ऑफ 9 रख देती हैं सीधा उठा के। और सीपीआई का सही बताऊं कट ऑफ, मैं तुमको सीपीआई का एग्जांपल देता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। कि माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्न का टेस्ट था, और मेरी सीपीआई लाइक 9.25 या 27 थी उस टाइम पे। और मैंने लाइक जितना उनका उनका तो एक तो आसान सा टेस्ट होता है और सारे सवाल बन जाते हैं, सबके बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर वो सीपीआई मार देते हैं उठा के, सीपीआई क्राइटेरिया। और ऐसे सिचुएशन में लाइक कट ऑफ लाइक 9.3 या 9.29 ऐसे कुछ चला गया था उसका, तो मेरा रह गया था। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने सारे सवाल बना लिए, सीजी अच्छी है, लाइक 9.25 देखो तो ठीक अच्छी है काफी, मतलब 9 के ऊपर सही लगती है। बट हाँ जब कट ऑफ कटने होते हैं ना तो फिर कट जाते हैं, फिर तब लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं सीजी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए थी शायद। तो सीजी का इट्स अप टू यू, तुम्हारी इच्छा है अगर रखने की ज्यादा तो रखो, किस कोई अगर बोल रहा है तो उसको बोलने दो। तुम्हारे दोस्त लोग कहेंगे कितना पढ़ रहा वगैरह, इग्नोर देम, जस्ट तुमको रखना है तुम रखो, अपनी जितनी हाई रखनी रखो, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीबॉडी, मतलब नहीं। दोनों टाइप के लोग हैं कि कोई बोल रहा है कि सिर्फ सीपी पे फोकस करो, कोडिंग बाद में देख लेंगे, और कोई बोल रहा है कि एक्सप्लोर करो, सीपी थोड़ा कम हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी तो देखो करना देखो सी लाइक जैसे सीपी वगैरह का है ना, करनी पड़ेगी, उसको भी करना जरूरी है तुम्हारा, क्योंकि कहीं नहीं हुआ तो कोडिंग ऐसी चीज है ना जो इसमें तुम्हें कहीं भी जॉब दिलवा देगी। कहीं भी अगर तुम्हारा कंसल्टिंग वगैरह में किसी में जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें नहीं हो पाया, तो अलग बैकअप तुमको कोडिंग दिलवा देगी जॉब, ये तो पक्का है। क्योंकि कंसल्टिंग वगैरह कंपनीज अपने यहाँ कम आती हैं, इतनी ज्यादा नहीं आ रही हैं। कोडिंग तुम्हारे हाथ में है, एक बैकअप रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है अपने पास में। वो नहीं होता तो वो लाइक इट्स अ प्रॉब्लम, प्रेशर आता है फिर काफी। कंप्लीटली इग्नोर करना भी सही नहीं है, सीपीए को ध्यान में रख के जाना है। मैं तो नहीं कहूंगा कि इग्नोर करना जरूरी है, 10 लोग बोलेंगे कि इग्नोर कर, इतना ना पढ़ वगैरह, बट इग्नोर करूंगा, मतलब तुम्हारे ऊपर है। मेरे ब्रांच में भी कुछ लोग हैं जो जो कैंपस में एकेडमिकली सिखाते हैं, वो कुछ नहीं सीखते, फिर ऑनलाइन में सिर्फ कोडिंग देखते रहते हैं, तो ऐसा भी मतलब वो भी हाँ, तो वो बंदे भी सही है, लाइक इट्स अप टू देम। उनको लग रहा, देखो बात ये है कि मतलब सीपीए उतना मैटर करती भी है, कहीं कहीं नहीं भी करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी उतना मैटर नहीं करेगी, बट अब जैसे ये काफी जो केस मैंने तुमको बताया माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो वो काफी लाइक एज केस था। तो अगर वो एज केस तुम्हारे में फंस जाता तो तब लगता है ना कि वो 0.02 0.03 मेरे पास होते तो मेरा भी इंटरव्यू हो जा गया होता वगैरह। ट्रू ट्रू। तो यार
तो ऐसे आपके सीरियसली मन में, प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, आपके मन में ऐसे कुछ मेमोरी है जो लाइक आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया है, शायद कैंपस में भी, या फिर कॉलेज टाइम, या फिर उसके अलावा भी कुछ मेमोरी है जो आपको शायद कोडिंग कोडिंग करने को मोटिवेट किया है, या फिर एक्सप्लोर करने को, ऐसे कुछ यार मेमोरी है? कुछ नहीं यार, देखो यार, रूममेट था मेरा, ठीक है, तो काफी अच्छा कोडर था। अभी भी लाइक वो मेरे साथ साथ में ही कंपनी में भी। हम्म। तो और तो वो करता था अच्छे से। तो एक हम्म। वो मोटिवेशन था मेरे लिए कि कर रहा है, चलो अपन को भी करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर भी। तो और लाइक ईसी वगैरह में अगर तुम देखोगे ना, लाइक सर्किटल ब्रांच में, तो यहाँ पे एक अलग कोडिंग का माहौल दिखेगा तुमको। फिफ्टी हम्म। परसेंट ऑफ द ब्रांच कोडिंग करेगा अच्छे से यहाँ पे। सही, हाँ। फेल कर मतलब वो पहले से कोडिंग करेगा अच्छे से। तो लाइक वो एक अलग में एक पीयर प्रेशर कह लो, तुमको एक मोटिवेशन दे ही देगा कि तुमको करनी ही करनी है, नहीं हम्म। करनी तो। हम्म। तो और डिफरेंट रूट पे जाते हैं, मतलब हम तो बहुत ही डेप्थ में जा रहे हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, तो अगर आपको एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी होती है ऑटो आपके बारे में, तो उसका टाइटल आप क्या देते अपने बारे में हैं? अपने, हाँ, आपके बारे में, हाँ। आ, सोच लो तो ना। सोचने का क्वेश्चन है तो। सोचने लायक क्वेश्चन दिया है यार तुमने, मतलब कि ऑटोबायोग्राफी दी है, उसके टाइटल क्या रखेंगे आप? सो कह सकते हैं द मैन हु नेवर रिपीट्स अ मिस्टेक, और द मैन हु लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। तो आपके यू थिंक इट्स द worst thing you can do, not, it's not to make a mistake, लेकिन to repeat the same mistake, तो मिस्टेक वर्स्ट से। थिंग वर्स्ट थिंग यार ये होती है कि लाइक तुम उसी मिस्टेक को रिपीट करो, हम्म। उस मिस्टेक से सीखो मत। और ये भी नहीं कि तुम उसको पूरी तरीके से रिपीट करो, लाइक कुछ ना कुछ, लाइक मिस्टेक्स कुछ जो ऐसी होती है लाइफ में जो कि हम्म। एक बार आप कर चुके हो, बट दूसरी बार आप करने के लिए हो सकता है शायद आपको फिर आप कर दो, एक चांस लगे आपको कि हम्म। हो गई है, बट हाँ, उस मिस्टेक में कुछ ना कुछ अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है like, ट्रू, ट्रू। क्योंकि पहली पहली मिस्टेक से जो आपने सीखा है वो उससे आप ट्राई करो कि दूसरी मिस्टेक ना हो। हम्म। अब जैसे लाइक मेरा यही है कि मैंने जितनी अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करी है बैठकर, हम्म। कॉलेज में हो गया, घर बैठे बैठे, तो अब मेरा यही है कि मैं उसको अब नहीं, अब मेरे को वो मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि हम्म। उसकी वजह से मेरे को अब दिख रहा है इफेक्ट क्या था। लाइक शॉर्ट टर्म में मेरे को कोई इफेक्ट नहीं दिखा, क्योंकि मेरा तब सही, तब शायद एज ऐसी होती है कि सब सही चल रहा है। अभी तुम्हारी एज में लाइक अगर तुम हेल्थ को साइड रख भी दो तो सब लाइक लाइट है, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। बट अगर लॉन्ग टर्म में आकर तुमने अपनी हेल्थ को साइड रख दिया, अभी तुम साइड में रख रहे हो, अगर तुम ऐसे समझो कि रोज तुम आधा घंटा एक्सरसाइज करो ना, तो बाद में आके तुमको 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। सही से, हाँ। इट्स जस्ट लाइक दैट। लाइक मैं भी देखो, मेरा भी वेट काफी बढ़ गया था, लाइक 85 तक मैंने अपना वेट देखा है। अब तो जैसे जैसे मैंने इसको 75 कर रखा है, अभी और कम करना है, अभी मतलब मेंटेन रखना काफी दिक्कत है। बट हम्म। अगर यही काम मैंने पहले थोड़ा आधा आधा घंटा दे के किया होता अपनी अकेट्स के साथ ही कहीं ना कहीं, तो शायद वो एक पॉजिटिविटी मेरी मेंटेन रहती है अभी तक। सही, मतलब हाँ। अभी मेरे को अब जैसे प्रिपरेशन करनी है इतने बड़े एग्जाम की, यूपीएससी वगैरह की, तो मैं उसमें कहीं ना कहीं इतना संकोच ना कर रहा होता, मतलब इतना इफेक्ट ना कर रहा हूँ, मेरा फोकस जो रहता फिर पूरा प्रिपरेशन पे रहता। हम्म। मतलब मैं से वो हेल्थ का मेरे पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा था, लाइक एक टाइम पे मेरा लाइक ब्लड प्रेशर जो था वो लाइक 160 प्लस 160 क्रॉस हुआ था। हाँ। तो बहुत भयंकर हाइपरटेंशन हुई थी मेरे को। तो लाइक तो ऐसा कुछ ऑनलाइन कि क्या क्या, हुआ? ऑनलाइन के टाइम पे ये हुआ कि, या फिर ऑनलाइन ऑनलाइन इसी साल हुई थी, इसी साल लाइक जनवरी में। लाइक बहुत हेल्थ लाइक बहुत एकदम खराब हो गई थी, एकदम हालत लाइक डेली लाइक हेडेक्स वगैरह रहते थे। तो फिर अच्छा। मैंने सोचा यार मतलब ठीक है, अभी अब ऐसी हालत में मैं प्रिपेयर तो नहीं कर सकता साथ में। हाँ, तो अब उसको अपने हेल्थ को थोड़ा फोकस किया, और उसके बाद फोकस वापस अभी अपने। मेरा वापस, हाँ अब थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा हूँ धीरे धीरे। लाइक अब उसको मेंटेन करने वाली बात है, क्योंकि मेरे को हेल्थ भी देखनी है, जॉब भी देखना है, ये भी देखना है। मेरे पास अब तीन तीन प्रेशर आ चुके हैं ऑलरेडी, और तो कोई एक ना एक चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है फिलहाल अभी, और वो है मेरी एकेडमिक्स, क्योंकि मैं हेल्थ में इस समय कर नहीं सकता। जॉब में मेरे को कोई सैलरी दे रहा तो वो करने देगा नहीं तुमको। ट्रू, तो या इट्स लाइक मेरा तो यही रहेगा कि हेल्थ पे कभी लाइक कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेस, क्योंकि हम तो स्पेशली हमारे तो फ्रेशर्स को 10 दिन ऑफलाइन क्लास मिला है। तो हम नाइट आउट्स और बिना सोते
क्लास अटेंड करना, वैसे सब देखो कुछ किया। वो सब करो, बट वो करना भी जरूरी है, बट उसको मेंटेन रखो। ऐसा नहीं कि मतलब कि रोज ही नाइट आउट पे जा रहे हैं, ये भी नहीं, हफ्ते में एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मेंटेन करो, डिसिप्लिन लाओ थोड़ा चीजों में। ये इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन मतलब इस चीज में काफी इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा। रोज को तो नहीं, रोज रोज कर रहे हो तो गलत है थोड़ा, कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुम लाइक एक जो मॉर्निंग की बात अलग होती है ना, तुम सुबह 5 बजे उठ कर देखो जरा, 4 बजे 5 बजे उठ कर देखो, एक अलग तुमको एनर्जी दिखेगी। और तुम वही हाँ चीज दोपहर दोपहर में 4-5 बजे उठ कर देखो, ठीक है मैं मान लो तुम रात भर पढ़ोगे वगैरह का कहीं ना कहीं, बट हाँ, मॉर्निंग पे इट्स थोड़ा। नॉट इट्स नॉट द सेम। अगर कहीं आयुर्वेद में लिखा है कि 4 बजे उठना ही फायदा था, तो कहीं ना कुछ कुछ रीजन है। सही बात, हाँ। क्या, तो हाँ, बैलेंस में करना है सब कुछ। मेरा यही है कि अगर नाइट आउट वगैरह करो, बैलेंस पे करो, हफ्ते में 1-2 दिन ठीक है, बाकी दिन अपना थोड़ा ऐसे ही है। ऐसे तो ऐसे लाइक कॉलेज में एक और चीज थी मेरी, कि लाइक स्विगी जोमेटो बहुत होता था अपना, रोज ही हो रहा है बैठ कर, क्योंकि मैस का खाना अच्छा लग नहीं रहा वगैरह का। और फिर अपन को लाइक फिर इंटर्न का जब पैसा आया तब भी खूब स्विगी जोमेटो हुआ है बैठ कर। तो एक इससे एक और एडवाइस मेरे को याद आती है कि लाइक अपने जो बैलेंसेस है ना, एक बैलेंस शीट मेंटेन करके रखो। लाइक आई गेस इट्स टू मच लाइक आई एम आस्किंग, बट ये आदत मेरे अंदर लाइक फर्स्ट सेम में थी। मैं अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करता था उस समय, तो लाइक ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होते नहीं थे, तो मैं अपने लाइक पूरी एक्सेल शीट मेंटेन रहती थी मेरी। उसके बाद फिर अच्छा। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हो गए, तो फिर मैं उसको इंक्लूड करने लगा, तो कहीं ना कहीं वो आदत छूट गई। बट फिर जब इंटर्न का पैसा मैंने जब खर्च होते हुए देखा अपना, लाइक मैं क्या बताऊं, मुझे लगा था मेरे पास इंटर्न का पैसा ये समझो 35,000 पड़ा होगा, पर जब मैं उसको खर्च करने गया, देखा मैंने, तो देखा ये 15,000 बचे हैं। तो अच्छा। ये चीजें लॉन्ग शॉर्ट टर्म में नहीं समझ में आएगा, क्या क्या लगेगा, 100-100 रुपए तो खर्च कर रहे हैं स्विगी जोमेटो में, ठीक है, 100-200 में क्या जा रहा है, बट धीरे धीरे करके वो खूब बड़ा बन जाती है। तो उसको लाइक उसको भी बैलेंस बैलेंस शीट क्या करेगी, तुम्हारे पास अगर डेटा होगा ना, तो तुम उसको देखोगे, वो तुमको एहसास दिलाएगा तुम्हारे खर्चे कितने हो रहे हैं, तुमको ये रखेगा तुम अपने हेल्थ पे कितना लाइक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपना। तो तो स्विगी उसमें भी बैलेंस यही है, करना है। स्विगी जोमेटो कर रहे हो, कर लो, हफ्ते में 2 दिन कर लो, लेकिन फिर 4 या 5 दिन हिम्मत करके मेस का खाना खाओ। जरूरी है वो जरूरी है। तुमको लग रहा होगा तुमको रिफंड मिल जाए, एक तो अपने कॉलेज ये भी है करना कि मतलब रिफंड मिल जाता है। रिफंड मिल जाता है, सही। हाँ, तो मेरे को भी ये लगा अपना रिफंड मिल जाता, अपना क्या ही लॉस हो रहा है, बाहर से खा लेंगे अपन भी। बट हाँ, हफ्ते में 5 5 दिन 4 दिन खाओ मेस का, 3 दिन बाहर खाओ, चलेगा। बट बैलेंस करो चीजों, बैलेंस करना बहुत जरूरी लाइफ में। वैसे हम तो SCS का पार्ट है, दिस चिट चैट इज होस्टेड बाय SCS। तो इट्स बेसिकली स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज, वी स्टूडेंट को हेल्प या करने के या लिए। तो आपके आपके माइंडसेट में क्या ऐसा कुछ चेंज करना है हम वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली ज्यादा रीच कर सकें हम? देखो इंडिविजुअल तो यार रीच करना किसी के बस का नहीं होता, ठीक है। सही। ठीक है, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि लाइक थोड़ा थोड़ा अपना मैनेजमेंट लाइक तुम लोग को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, सुधारना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लाइक मैंने देखा है SCS का पहले भी, लाइक इट्स काइंड ऑफ इट्स लाइक अभी काफी नया नया ऐसा है, अभी भी, अभी उतना लाइक उसको एक तो ऑनलाइन में इतना कुछ खास पता चला नहीं, ऑफलाइन में कुछ खास पता चला नहीं, ऑनलाइन में मेन रहा है तुम लोग का। तो थोड़ा सा मेरी समझ से लाइक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं वीक है। कोर्स लाइक को। या लाइक जैसे फ्रेशर्स कुछ काम कर रहे हैं, तो वो लाइक सीनियर को उनको वेरीफाई नहीं कर रहा उस काम को। तो ट्रू। वो चीज कहीं ना कहीं है कि लाइक ये लुक करना चाहिए सीनियर्स को भी और जूनियर्स को भी। लाइक जूनियर जूनियर काम है कि अपना तुमने काम किया है, वो परफेक्ट नहीं होगा। ये तो लिख के ले लो, कोई किसी काम परफेक्ट नहीं होता, तो वो एक अपने तुमको सीनियर को दिखाना पड़ेगा, सीनियर से एक वैलिडेशन लेना पड़ेगा ट्रू। तुम्हें। हाँ। और सीनियर काम ये है कि उसको थोड़ा थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट ही सही निकाल के उसको कहीं से वैलिडेट करो चीज को। थोड़ा सा कहीं मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया लाइक एसोसिएशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ी सी मैनेजमेंट की कमी रहे कहीं ना कहीं। लाइक डोंट टेक इट लाइक एक नेगेटिव पॉइंट है, नहीं नहीं, टेक वी इट हैव टू जस्ट वर्क एज ऑन अ इट। हाँ। टेक इट एज अ लाइक जस्ट अ नॉर्मल फीडबैक, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है। Exactly, like people like you are the only people who can give constructive criticism, जैसे कि ऐसा चेंज करना है,
because you have experienced it. तो या आप लाइक जो मेरा बोल रहे थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज का, थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं हल्की सी मैनेजमेंट में लाइक इट्स काफी हद तक सुधर गई, लाइक जितना नया है हैं। लाइक मेरे को उस हिसाब से काफी चीजें सुधर गई, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ी सी हाँ कहीं तो ना कहीं कमी है। और वो शायद हर क्लब में हो सकती है, बट इम्प्रूव करना अपना काम होता है वो। हाँ ठीक है। वो तो बहुत अच्छी एडवाइस थी, वी विल वर्क ऑन इट, इसके लिए खुश है। और वैसे आप जब हॉस्टल में थे, लाइक ऑफलाइन क्लासेस उस सब में कुछ, बिकॉज हम भी तो सिर्फ 10 दिन के लिए ऑफलाइन एक्सपीरियंस किया है, तो एक कुछ चैलेंज जो आपको ऑफलाइन में हॉस्टल में या फिर एडजस्टमेंट इशूज ऐसा कुछ आपको हुआ था क्या, ओवरकम कैसे किया आपने? तो यार फर्स्ट ईयर में यार एक होता है ना लाइक, अब जैसे मैं था कि मैं घर से बाहर उतना निकला नहीं था पहले भी, तो हम्म फर्स्ट ईयर में लाइक खूब होम सिकनेस तो खूब रही अपने को। हम्म ब्रांच चेंज भी रही साथ में, होम होम सिकनेस खूब मैंने देखी है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं लाइक महीने में हर महीने में 2 बार तो घर ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर भी पास कानपुर में था, तो चलो अच्छा ठीक अच्छा है। हाँ। घर वाले भी लाइक खुश कि चलो उनका बेटा आ रहा है। बट हाँ कहीं ना कहीं ये चीज थी कि लाइक होम सिकनेस ओवरकम यार अपने आप करना पड़ा, लाइक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। हम्म अगर मतलब तुमको कोई चीज परेशान कर रही है तो उस वही चीज तुमको करनी पड़ेगी, लाइक तुमको लग रहा है कि कि तुम मैं लाइक मेरे को काफी परेशानी हो रही थी स्टार्टिंग में, लाइक ठीक है पहले के 3-4 महीने तो चलो ठीक है, पहला सेमेस्टर चलो मैं घर काफी आया, फिर दूसरे सेमेस्टर मैंने लाइक चलो महीने में उसको एक बार ले आया कि महीने में एक बार चलो मैं घर जाऊंगा। हम्म तीसरे सेमेस्टर में आकर महीने में 2 महीने में एक बार हो गया एक वो। बार हाँ। और चौथे सेमेस्टर में यार अब देखो जितना टाइम मैंने रहा, तो चौथे सेमेस्टर में एक बार शायद घर आया था होली के टाइम में, मतलब होली नहीं, होली के पहले एक बार आ गया था, खड़गपुर हम्म से आने के बाद आ गया था घर हाँ वापस, उसका फिर घर ही बैठा हूँ। अच्छा हाँ। तो तो वैसे फिर ये हाँ आज जब वो चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पीयर प्रेशर भी होता है, हर कॉलेज हर कैंपस में होता है, तो इसका फिर ये भी काफी था अपन को फर्स्ट फर्स्ट में याद है कि अपन लाइक जिसके रूम में जाओ राजश्री से पढ़ रहा है बैठकर, फिर लगता था यार सभी पढ़ रहे हैं कैसे होगा अपन का वगैरह का। हम्म, तो मतलब वो, पॉजिटिव भी हो सकता है पीयर प्रेशर, सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ना है ऐसा। देखो देखो मेरे लिए पीयर प्रेशर का ज्यादातर नेगेटिव रहा है। तो अच्छा मतलब अच्छा। जब मैंने लाइक पीयर प्रेशर को फेस किया है, हम्म तो मेरे को यूजुअली वो नेगेटिव रहा है कि लाइक मेरे को थोड़ा ये रहता है कि चलो दूसरा पढ़ रहा है तो अपन क्या करेंगे वगैरह वगैरह, मतलब सबका भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये रहता है अगर कोई दूसरा बंदा ही मेरे इतनी मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों पे ही बराबर का कंपटीशन है फिर, लाइक इट्स true, नथिंग कि लाइक कंपटीशन कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। तो हाँ एक थोड़ा सा टेंशन आता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, बट हम्म उसको ये एक नेगेटिव रही है लाइक मेरे अंदर भी है थोड़ा सा कि अभी भी है कहीं ना कहीं कि पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है, जैसे यूपीएससी का देख लो, लगता है कि sure, यार 10 10 लाख लोग दे रहे हैं, होना 700 का है, 700 में 350 हटा दो, लाइक 350 जनरल हो गए, तो साढ़े हाँ साढ़े 350 में लाइक कैसे आए हैं क्या वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं ये पीयर थोड़ा सा है। true, true, बट हाँ हाँ उस पीयर प्रेशर को फिर फेस पीयर तुम्हें को करना है कि ठीक है यार अपन अटेम्प्ट एफर्ट्स करो, जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो बैकअप है। अब इतना भी है यार कि मतलब अब ऐसे तुमको एक माइंड से बनाना पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं वर्ष से वर्ष भी हो गया तुम्हारे साथ, तो तुम कुछ ना कुछ फेस, तो तुम कुछ ना कुछ कर लो लाइफ में। हम्म ये तुमको ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा अपने साथ में, कुछ भी हो जाए तुम एक लाइक थोड़ा कभी मोटिवेशन चाहिए ना, तो अपने लाइक पास्ट अचीवमेंट्स ही देख लेना बैठकर। हम्म कि एक पेपर लेना, उसमें तुमने जितना अचीव किया है लिख डालना, कुछ भी लिख डालना, ठीक हम्म है। और उस पेपर को एक दिन अपने पास रखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, अगले दिन भले फाड़ फेंक देना, क्योंकि अगले दिन फिर तुमको उस ह्यूमिलिटी वाले फेज में जाना है, true, ठीक हाँ है। बट उस टाइम पे तुमको उस फेज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। true, उस हाँ हाँ exactly, पेपर अपनी सारी अचीवमेंट लिख लो, समझ में आ जाएगा कि तुम काफी कुछ कर सकते हो, कुछ बुरा भी होगा तो तुम संभाल लोगे अपने आप को। हम्म तो लाइक मेरा तो यही रहता है, कुछ भी डिमोटिवेट हुआ पेपर लिया उठाकर, जितना कुछ अचीव किया लाइफ में लिख डाला एक हम्म पेपर में, एक पढ़ा, अच्छे से लग गया, दीवार चिपका लिया, चलो ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन पेज फाड़ा फेंक दिया, चलो फिर से ह्यूमिलिटी वाले पेज में आ गए, क्योंकि अब ह्यूमिलिटी मेरे को ड्राइव कर रही है फिर आगे, हम्म ऐसे। इट्स अ काइंड ऑफ वे टू हैंडल द पीयर प्रेशर एंड ऑल द डिमोटिवेशन। हम्म
अगर आपको स्पीकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ मोटिवेटिंग योरसेल्फ, इफ यू कुड रिलिव वन मोमेंट ऑफ कैंपस लाइफ, नॉट इवन ऑफलाइन, ऑनलाइन भी हो सकता है, आप कौन सा मोमेंट चूज करेगा रिलीव करने को? मोमेंट लाइक एज सच, इन एनी टाइम, एनी एक्सपीरियंस या फिर इंटरेक्शन विद समवन एल्स, ऐसा कुछ आपको रिलीव कर सकते हैं तो एक फेस्ट होगा, कुछ फेस्ट या फिर होली सेलिब्रेशन खरगपुर से। ना मतलब उन सब में तो इतना नहीं है, अपने ऊपर ही मेरे को मिल रहा है। जैसे ऐसी बात की है तो लाइक एज अ हैबिट, लाइक मेरे को भी था, लाइक एज अ फिटनेस को मेरे को देखना था। मैंने फिटनेस का पॉइंट पहले बोला है ये, हाँ तो वो एक पॉइंट है मेरे साथ। दूसरा पॉइंट ये था कि लाइक गेटिंग इन्वॉल्व विद अदर्स। दूसरा पॉइंट ये है, लाइक हॉस्टल में कोई इवेंट हो रहा है तो मैं यूजुअली क्या करता, उसको इग्नोर कर देता। अरे कर रहे होंगे चूतिया साले, मरने दे सालों को, अपन पढ़ेंगे। एंड इट्स काइंड ऑफ माइंडसेट लाइक यूजुअली many of us have, like करने दो जो कर रहा। बट हाँ, कहीं ना कहीं आगे यू शुड गेट इन्वॉल्व। कुछ लग रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, वहां जाके खेलो, 15-20 मिनट खेलो, भागो, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ खेलो जाके जरूर। तो एक ये पॉइंट है। लाइक मेरे को याद है कि लाइक बंदे बैठ ये 15 अगस्त वाले लाइक जो होते नहीं हॉस्टल के इवेंट्स, उसमें मैं क्या करता था, कहीं जाके उस दिन जाके कुछ करना है तो लाइब्रेरी भाग गया। नो, एक मिनट, शायद लाइब्रेरी बंद रहती है उस दिन, ऐसा कुछ। तो हाँ, ऐसा हुआ कि मतलब कुछ नहीं, रूम में बैठे हैं, रूम बंद कर लिया, बैठे हैं, नहीं मन है बाहर निकलने का, अपन मतलब कर रहे हैं, कुछ सीरीज वगैरह देख ली। तो ये एक गलत चीज थी, लाइक क्योंकि मैं रूम में बैठ कर पढ़ नहीं रहा हूँ ना। लाइक मैं ना कोडिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अनप्रोडक्टिव सीरीज देख रहा हूँ बैठकर। बट उस इट्स ऐसा नहीं कर रहा सीरीज अनप्रोडक्टिव है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अनप्रोडक्टिव है। कि लाइक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा ये है कि लाइक मेरे को बाहर आके लोगों से इंटरेक्ट करना है, कोई इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है तो वो सेलिब्रेट करना चाहिए। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर इग्नोरिंग दैट थिंग एंड यू आर लाइक, चलो रूम में बैठकर सीरीज देखते हैं, क्या करेंगे 10 लोगों से बात करके, हटाओ यार, रोज एक ही हॉस्टल में रहते हैं। वो नहीं, वो उस इवेंट की बात है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये चीज आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। जितना आप 10 लोग से बात करोगे ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी, पहले छोटा सा आपको लग रहा है, अब तुम मेरे से बात कर रहे हो, अब यही मैं कहूँ ना, फर्स्ट ईयर में अगर मैं होता तो ये अपॉर्चुनिटी, अरे हटाओ यार, क्या करना, ठीक है सीनियर्स अपने पास काफी है वगैरह का। बट मोटिव ये नहीं चाहिए कि सीनियर मेरे को क्या दे के जा रहा है, मोटिव ये होना चाहिए कि मेरी स्किल्स कितनी खुल रही है। सॉफ्ट स्किल्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक अभी अपने कॉलेज में लाइक थोड़ा सा पहले लाइक मेरे टाइम थोड़ा सा रहा कि मतलब उतनी सॉफ्ट स्किल मैंने नहीं अपनी एनहांस करी, जो कि अब लगता गलत है। कोई भी मीट हो रही है तो मैं मतलब वैसे जा रहा हूँ, वीडियो बंद कर रहा है, अरे हटाओ यार। मतलब जैसे कोई कंपनी की मीट हो रही थी, अब मैं इंटर्न का बताऊँ तो कंपनी की मीट हो, अब जैसे लाइक अपनी लाइक लास्ट ईयर इंटर्न की लाइक पहली मीटिंग थी। तो अब मेरे को लाइक उस टाइम पे बाथरूम जाना था, लाइक वॉशरूम जाना था मेरे को, और लाइक थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो मैंने ये नहीं कहा मैनेजर से, लाइक उसको ये बोला कि मीट बाद में रख लेते हैं। मैंने कहा यार कैमरा तो खुलवाता नहीं है, चलो चलते हैं। गए बाथरूम, अब उसने बोल दिया यार उसी टाइम पर, लाइक ओपन योर कैमराज, ठीक है। सो आई एम लाइक व्हाट शुड आई डू। सो मैंने माइक किया और मैंने उसको बोल दिया कि एक्चुअली माई कैमरा इज इन वर्किंग, सो आई विल लुक इनटू इट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा जुगाड़ उस टाइम पे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जुगाड़ है। बट अब मैं देखता हूँ वापस जाके तो वो जुगाड़ गलत था। इट वॉज काइंड ऑफ कि लाइक तुम कैमरा बच रहे हो, तुम कैमरा लाइक पिछले सर इंटर्न में मैं ज्यादा कैमरा खोलता नहीं था अपना, ट्राई करता था कि मत, क्या ही करना यार, मतलब खोल कर अपना कपड़े चेंज करो वगैरह करके, ठीक है। बट ये गलत पॉइंट होता है। लाइक इट्स काइंड ऑफ कि थोड़े दिन सही रहता है, अच्छा लगेगा करके, एक दो बार अच्छा लगेगा करके, बट इन द लॉन्ग टर्म इट्स लाइक इट अफेक्ट्स यू ड्रास्टिकली। सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी, या क्योंकि अब वीडियो नहीं खोल रहे हो ना, अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हो अगले बंदे को, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ लाइक हर्टिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स काइंड ऑफ लाइक नॉट बीइंग एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल। लाइक लास्ट ईयर मैं ये काम करता था, अब क्या है, अब मैं हर मीट में अगर कोई भी
4 बंदे हैं तो भी अगर चारों ने कैमरा बंद रखा है तो भी मैं लाइक एक बार अपना कैमरा खोलूंगा। लाइक अगर मैं अपना को इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ तो इंट्रोड्यूस के टाइम ही अपना कैमरा खोलूंगा, भले मैं बाद में बंद रखूँ। सही। सो इट्स ठीक है, भले दूसरे बंदे ना करें बट मेरे को ठीक है, हाँ मेरे को कैमरा खोलना, मैं ठीक है, मैं अच्छे ढंग से बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ तो फोकस के साथ कर रहा हूँ तो ठीक है, और मेरे को सही। अच्छा लगता है। ये चीज मेरे को लाइक इम्प्रूवमेंट दिखाया, लाइक मेरे को बेटर लगता है ये चीज। तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज सबको बढ़ाने के लिए शर्म शर्म यूज नहीं करना है, हम थोड़ा कॉन्फिडेंट होके कैमरा ऑन करना है, ऐसे सब कुछ करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा लोगों से मिलना भी पड़ेगा जाके, जो चीज डिफिकल्ट लग रही है वही चीज करो जाके। मैं तो सीधे यही कहता हूँ, लाइक इफ यू हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, लाइक मेनी पीपल हैव प्रॉब्लम व्हेन दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है, so many people can't be that much fluent though they know too much, but yeah, अगर कहीं उस चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो try to interact with that thing only, हाँ ट्रू। लाइक improve करेगी। मुझे हिंदी में उतना क्लियर में फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी व्हेन आई कैन, ऐसा ही Yeah, आई गेस। yeah, you should actually have told this thing to me in the No, starting no, itself. no, I no, would no, have I would have kept the entire session in English, like no, I'm comfortable, I can understand very well, लेकिन बार बार yeah, में थोड़ा yeah, yeah, and डाउट it's से। no issues. I'm okay with both the languages, so हाँ, I mean, yeah, you speak both quite fluently, so it's fine. It was quite yeah, easy to go also. वैसे अभी you've so been speaking, I've been taking your time for almost 1 hour, so thank you so much for your time. Is there anything you want to add, Bhaiya? Like give an advice to your juniors? Hello, there seem to be some. yeah, yeah, Uh-huh. yeah, yeah, I guess Anything, like, some any, network yeah. issue. So could you? Is there anything you could like you want to tell your juniors? I can advise you something as an advice maybe. ऐसा कुछ like थोड़ा explore करना है, ऐसा कुछ आपको करना होगा काफी क्या? yeah, see exactly, like if you like go to through the entire session, this session, Hmm. I guess there are many from my experiences, like many advices can be noted down. हाँ, true. Like the health one, the fitness one, Hmm. and like not like living in the room entire time, not staying in the room entire time, and Yeah. doing and being more productive. So yeah, those kind of advices, and like exposing yourself to the most difficult tasks. That's Yeah. one. And like one thing I like to add, like most of people like they will not do. I know that. Like it's just kind of like if you can just give you 5 minutes, start with 5 minutes and just like go, just like sit and cross your legs, sit in a room and meditate for 5 minutes. हाँ. Hmm. Just 5 minutes. Start with 5 minutes. Hmm. Like at the start of the day, or you can do it at the end of the day, like 10 to 20 minutes before sleeping, and like yeah, it makes your day. Hmm. Like it Yeah. helps you keep focusing. It is It's very it is a more very simple thing. Like many people refuse, like can't have the self control to do it every day. yeah, actually it's like more kind of a Sadhguru type advice you can say, or some kind of Right. like you can say like it's a, like quite an old one. But yeah, if you like see the modern sciences, they are progressing towards that Ayurveda only, which we have left. Hmm. Actually, most of the people like yeah, meditation and yoga and all. Hmm. Just meditate only for 5 minutes. I think 5 मिनट यार तुम मतलब क्या ही बोलो, 5 मिनट में बहुत सारे काम, लाइक कुछ 5 मिनट में क्या ही बोलो, कोई भी काम ले लो यार, 5 मिनट से कहीं से चुरा लो अपना, कहीं से 5 मिनट कम सो यार, कर लो True. 5 मिनट में, 5 मिनट ही तुम 5 मिनट ही फोकस लगा के देख लो, समझ में आ जाएगा। Hmm. क्योंकि वो सही. 5 मिनट में कोई बात है, 5 मिनट में ही फोकस नहीं लगेगा तुम्हारा ऐसा। ट्रू, लेकिन शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करना सही होगा। देखो मैंने तो 20 मिनट से कर लिया, क्योंकि मेरे 20 मिनट नहीं किया, 15 मिनट से मैंने स्टार्ट किया था। मेरा टारगेट 20 मिनट का रहता था, बट वो 17-18 में आके टूट जाता है मेरा भी। लाइक जितना जितना भी मैं कर लूँ, लेकिन 17-18-19 पुश करना अपने आप को थोड़ा और, तो 20-20 के एक घंटा तक मैं पहले 1-2 बार मैंने आधा आधा पौन घंटा किया भी है। बट स्टार्ट विद 5 मिनट। ऐसा मैंने कि जब तुम इतना ही ज्यादा टारगेट ले लो तो बैठ के बोर ही हो रहे हो, बैठ कर अब मैं क्या करूँ। जितना पॉजिटिव से उसकी तुम्हारे अंदर नेगेटिव ही ख्याल आ रहा है, तो व्हाट्स द यूज देन, फोकस है ही नहीं तुम्हारा।
start with just 5 minutes. 5 minutes करना ही मुश्किल रहेगा start में तो. सही हाँ, I've tried. It's Yeah, so मतलब माइंड that's वॉन्डर something. हो जाता है Yeah, mind gets wandered like और अपने mind gets wandered, so उस mind को like focus करना बहुत जरूरी है. Like, yeah, that is true. हाँ. yeah, So I would say it was a very informative session because we got a lot of, normally we get like one or two main piece of advice, but then we got a wide range of things we should consider before. So that yeah. Mainly like my main focus was, I guess, on health and health. हाँ, being more yeah. productive. Yeah. Because that मैंने was something that hasn't been brought up much कि health पर focus करना. It was always like productive होना, लेकिन productive to yourself is your health. या एक्चुअली लाइक प्रोडक्टिव होने के लिए हेल्थ जरूरी है. बात ये है Exactly. प्रोडक्टिव हाँ. होने के लिए जरूरी है. मतलब एक टाइम तक खूब प्रोडक्टिव मैं भी था, फिर एकदम जब प्रोडक्टिविटी घटी कोविड में आके, तो लाइक मैंने भी लाइक अपना घर बैठे बैठे लाइक मेरी हेल्थ लाइक काफी चली गई ना. लाइक मेरा लाइक इतना ज्यादा लाइक हो गया था. अभी पहले तो बहुत दिन भर लाइक पूरी बॉडी में फैट रहता था, बट यार अब काफी कम हो गया है. तो अभी और कम करना है अभी तो इसको फिलहाल. मेडिटेशन और एक्सरसाइज सब करके अब कंट्रोल किया. करना तो जरूरी है. तो इट्स एन इम्प्रेसिव फीट. सभी लोग को आसानी से नहीं कर सकते. Anyway, thank you so much for your time, Bhaiya. It genuinely means a lot to our SCS and our campus. I'm sure everyone who's ever seen this and who will see the recording of this meeting also, Yeah. will also feel very thankful to you, Bhaiya. Thank you so much for your time. Is there anything more you would like to add, or is this? It's over. Like मैंने like काफी ज्ञान दे दिया. और like probably college terms में लोग काफी like ज्ञान dash 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 dash. So Definitely. Thank you so much for your time. It means a lot. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Can you lead it now? How like just I have to press the cross. Yeah, that's it. Right, yeah. Okay. Thank you. Okay. No problem. Bye. Bye. Good luck. Thank you so much. Okay, guys. Thank you for being there. We'll see you next time. It's your boy Pranav saying off. Bye bye.